we'll go through approach to acute chest pain. Now, before embarking on to really acute chest pain, we need to know the spectrum of IHD, which starts from stable, silent ischemia, syndrome X, Prinzmetal. These are the major ones. Otherwise, an ischemic chest pain can happen to a lot of patients as a stable entity. But the thing which we really today want to focus on is acute coronary syndrome. The phase where you have a rupture plaque within coronary, how to recognize and what to do with your patient subsequently. And that comprises of unstable angina, non-ST elevation MI and ST elevation MI. This is the background from where the disease is starting as atherosclerotic plaque. And then you have superimposed rupture plaque. Now, it's not necessary that your plaque will be ruptured once your plaque is up to 70 or 80%. It can rupture even at 20-30% of plaque, meaning by a background normal patient who's even playing football and subsequently he can have ACS, acute coronary syndrome, because of pre-existing non-flow limiting plaque. So that means we have to understand the disease pattern. It has two phases, atherosclerosis and atherothrombosis. Atherosclerosis is easy to understand in a way that this patient presents usually as a stable symptomatology with a background of pain on exertion, relief with rest, with ears. But this patient presents for the first time with symptoms. And this plaque rupture may be at left main, meaning by the main supplier. And if it quickly occludes the artery, your patient may die within minutes of that rupture plaque. So that's the important to understand the background, the differentiation of atherothrombosis and atherosclerosis. Usually we consider the spectrum to be unstable angina, non-ST and ST. There are much more to it because every patient is not definite ACS. His clinical presentation may be doubtful. Then you have to pick what he is, and these are the most difficult patient. क्योंकि जिस patient की clear cut ST elevate हो गई, उसमें तो symptom और बस देख के आगे भेजना है. Problematic patients are those we'll see in algorithm, that how they are different in a way in terms of presentation. That's the pathophysiology. A rupture plaque, we usually think that this rupture plaque, मुझे pointer दे दीजिएगा ज़रा, pointer. This rupture plaque leads to occlusion. Yes, you can have acute ST elevation MI, subacute occlusion, non-ST elevation MI. But this plaque sometimes just wax and wanes. ये आएगा, artery को थोड़ा सा बंद करेगा और फिर resolution हो जाएगी. These are the most difficult, temporary resolution. कुछ 3-4 मिनट के symptom और उसके बाद patient ठीक. फिर 3-4 मिनट बाद, 3-4 घंटे बाद फिर कुछ सिम्टम, फिर पेशेंट ठीक, ना कोई ECG चेंजेस, ना कार्डियक मार्कर पॉजिटिव, बिकॉज दिस रप्चर प्लैक इज नॉट completely occluding the artery, it's resolution with restoration of flow. And this is why you have to understand this timeline. रप्चर प्लैक हुआ, अभी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होंगे जब तक कि वो थ्रम्बस ब्लड फ्लो को कॉम्प्रोमाइज ना करे. ये कॉम्प्रोमाइज होने शुरू हुई, सिम्टम्स के कुछ इंडिकेशन शुरू हुए, परसिस्ट रही तो ECG चेंजेस आई, और ECG भी 60% लोगों में, 40% में हो सकता है सिर्फ सिम्टम्स और नॉर्मल ECG, और फिर कई घंटे तक ये पेशेंट आपके पास रहा, देन यू विल गेट द मार्कर्स. इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट मीन्स टू पिक atherothrombosis, it's the history which is the key. You may miss if you are just relying on ECG and marker. You may miss because some patients
may have typical symptom going on and their restoration of flow lead to no ECG changes, neither a marker positive. So key is to pick the patient's symptoms, characteristics, his background risk, and then finally decide, are you dealing in ACS or not? And that's why you have to move around in a way that if you just look on to the data, although we don't have, it's US data, commonest symptom cardiac etiology found in less than 1/3. यानी उनके पास इतनी लिबर्टी होती है कि वो 70% नॉन कार्डियक प्रोबेबिलिटी पे एडमिट करके और फिर एक्सक्लूड करते हैं. इवन देन दे मिस 2% ऑफ पेशेंट विथ टिपिकल MI आर मिस्ड. अब हम सोचें कितने मिस करते होंगे कि जब हम प्रोबेबिलिटी पे पेशेंट्स को एडमिट नहीं करते. इसका मतलब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज नॉट दोज 3 थिंग्स. It is actually any constellation of clinical symptoms that are compatible with acute myocardial ischemia, usually but not always caused by atherosclerotic cardiovascular diseases. इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. यानी ACS वो है कि जहां आपको जरा सी भी हिंट मिल रही है इन रिलेशन टू सिम्टम्स और बैकग्राउंड और रिस्क स्टेटस कि ये एक्यूट स्कीमिया हो सकता है. दिस इज ACS. देन यू फर्दर वर्क अप टू चॉक आउट कि आप क्या डील कर रहे हैं. डेफिनेट ACS कि सिम्टम इतने पक्के हैं कि वो लग रहा है ये अब ECG और उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ट्रीटमेंट शुरू करनी है. या सिम्टम ऐसे हैं कि कुछ शुबा है लेकिन टिपिकल ना एटिपिकल, तो दैट मीन्स नीड्स वर्कअप. और हो सकता है फर्दर वर्कअप के बाद ये फिर उस डेफिनेट क्राइटेरिया में आ जाए. तो दैट मीन्स ACS एक्चुअली स्टार्ट्स विथ सिम्टम सजेस्टिव ऑफ ACS जो आपके पास आएगा. एंड यू हैव टू चॉक आउट डेफिनेट है, पॉसिबल है, क्रॉनिक है या नॉन कार्डियक है. अगर ये दो है, डेफिनेट है तो फिर पक्का इसको अस्पताल जाना है, पॉसिबल भी है और हाई रिस्क है तो अस्पताल जाना है, इसको घर नहीं जाना है. यू मे मिस जस्ट ECG एंड मार्कर और नॉट इनफ. और ये चीज आप किससे पिक कर पाएंगे? डेफिनेट और प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल हिस्ट्री. और फिर यू नीड ECG रीडिंग स्किल्स एंड टाइमली डन मार्कर्स. मार्कर्स का भी एक टाइम है. 15 मिनट में आया वाला मरीज मार्कर पॉजिटिव नहीं देगा कभी भी, होने के बावजूद भी डेफिनेट इस्कीमिया. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्लिनिकल हिस्ट्री वो सब हम जानते हैं, मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा. ECG के हवाले से मैं ये अपनी एक बुक लाया हुआ हूँ, इट इज पब्लिश्ड दिस ईयर विद पैरामाउंट. बिल्कुल बेसिक्स ECG की बातें हैं इसमें. एक GP बड़ी आसानी से इसको पढ़ के ECG की मोटी मोटी चीज़ें देखना सीख सकता है. एंड देयर इज अ YouTube लेक्चर विद दिस ECG बुक. यू कैन जस्ट गो टू दैट लेक्चर एंड रीड दिस बुक. यू विल बी एबल टू डू. आई हैव गिवन वन टू Dr. Altaf Cheema and one for Dr. Zahidi. And then subsequently you can get it from Paramount. It will be inshallah helpful for you. अब हिस्ट्री में हमें वो बेसिक पे जाना होगा. वो तमाम चीज़ें अच्छी तरह उस चेस्ट पेन के हवाले से असेस करनी है विच रियली मेक अ सिम्टम टिपिकल. इसको मैं जल्दी से गो थ्रू कर देता हूँ. ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपने गो थ्रू करना है. सजेस्टिव ऑफ नॉन कार्डियक वो पता होनी चाहिए. एक हिस्ट्री अच्छी, बट दीज आर द 3 पेशेंट्स विच मे डिसीव यू इन हिस्ट्री. डायबिटिक्स, ओल्ड एज एंड फीमेल्स. सो इफ दे आर हाई रिस्क and you don't find any alternative diagnosis for them, consider them as ACS. Sometime old age patient may present you just unconsciousness and it may be inferior MI and block. So just do initial preliminary workup with these 3 kind of patients to decide about probability and definite status. Ischemic changes हम जानते हैं, ये बहुत सारी होती हैं, इसको अभी मैं डीप में नहीं जाता. लेकिन ST changes पिक करने के लिए ECG में इस J पॉइंट को देखना और फिर TP सेगमेंट को इससे कंपेयर करना बेस लाइन से, PR से या इससे, और फिर देखना कि ये एलिवेट है या डिप्रेस है. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सिर्फ ECG आप करेंगे और ये देखेंगे कि ये ऊपर है या नीचे है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. और फिर आप इसको जाके ये देखा आपने, पीछे से कंपेयर किया, एलिवेट है. फिर आपको वो टेरिटरीज पता होनी चाहिए जो डिफरेंट एरियाज को डिनोट करती हैं, वो लीड्स, और उसके हिसाब से फिर आप फैसला कर सकते हैं इज दिस पेशेंट हैविंग ST एलिवेशन MI और ST विच टेरिटरी MI. सिमिलरली डिप्रेशन भी इसी J पॉइंट्स के रिलेट करते हुए आपको करनी होती है, देखनी होती है. अच्छा,
जे पॉइंट को देखा आपने और कंपेयर किया और डिप्रेस है और मल्टीपल लीड्स में है, तो दैट मीन्स अगेंस्ट दिस इज एक्यूट स्कीमिया। ट्रोपोनिन का थोड़ा सा स्टेटस आपको समझना चाहिए कि ट्रोपोनिन अब हमारे यहाँ बहुत से टर्शियरी इंस्टीट्यूट में उसको उन्होंने की बना लिया है कि ये होगा तो मरीज कार्डियक है वरना नहीं है। दिस इज फॉर दोज हु आर प्रोबेबल, यानी एक आप अपना बिल्ड करते हैं हिस्ट्री पे। नाउ यू आर डूइंग ट्रोपोनिन इफ योर हिस्ट्री इज टिपिकल टू डिफरेंशिएट अनस्टेबल एंजाइना इन नॉन-ST elevation MI, and if you are doing troponin for a probable low risk patient, this is the patient where troponin helps you in diagnosing. Otherwise, if your history is typical, troponin is helping you to differentiate between two categories, is it non-ST or unstable angina. So still history is the key in utilizing troponin. हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन आप 1 या 2 घंटे के वक्फे से करके उसका पैटर्न दे सकते हैं। इसमें कुछ लोग जरा से लीक होने पे भी परेशान, अगर ये परसिस्टेंटली लीक है तो देयर आर अदर रीजंस फॉर लीक ट्रोपोनिन एज वेल, इवन सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शन, CKD, pulmonary issues, they all can lead to increase in troponin. So clinical correlation is again needed if you don't have typical rise and fall. अब थोड़ा गाइडलाइन से कंसाइड इनको कर देते हैं कि जब हम पेशेंट को अप्रोच करते हैं तो योर पेशेंट इवन विद सिम्टम कैन प्रेजेंट विद आइदर अलिगो ए सिम्टम, इंक्रीजिंग चेस्ट पेन, परसिस्टेंट चेस्ट पेन, शॉक और इवन अरेस्ट। तो ये आपकी इनिशियल प्रेजेंटेशन ही यहीं से शुरू हो जाता है रिस्क असेसमेंट कि करना क्या है मरीज का। अलॉन्ग विद इट यू हैव टू कंबाइन योर STT चेंजेस हैं या नहीं है। बट इफ such kind of patient, persistent, typical, ongoing pain, even with normal ECG, this is definitely ACS. ये की है, ये ऊपर का पेशेंट, ऊपर का स्टेटस जो है ये असल बुनियाद है। बाकी चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं कि किधर जाना है मुझे मरीज को लेके, एंड देन मार्कर्स फर्दर टू डिसाइड अबाउट योर डेफिनेटली। बट इवन नॉर्मल मार्कर बट एट टिपिकल सिम्टम अनस्टेबल एंजाइना वो भी डेफिनेटली होगा। तो ये इसको समझे कि ये जितनी भी एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस हैं, दीज आर ऑल बिल्ट अप ऑन हिस्ट्री, नॉट विदाउट हिस्ट्री। और फिर इसी की बुनियाद पे आपने फैसला करना है एज ए प्राइमरी केयर फिजिशियन वेयर दिस पेशेंट शुड गो। उसमें क्या है, ST एलिवेशन और हाई रिस्क नॉन-ST ACS, इनको PCIs की जरूरत होती है फौरी। सो आइडली दे शुड बी रेफर्ड टू टर्शियरी केयर सेंटर एज अर्ली एज पॉसिबल। यहीं से आइडेंटिफाई करके आपने सिर्फ वो वाले लोग हैं जो प्रोबेबल हैं और मॉडरेट टू लो रिस्क हैं, दैट कैन बी कैप्ट एंड ट्रोपोनिन, और फिर उसमें भी वो निकल आया, देन विद इन 24 आवर दे नीड इंटरवेंशन। और ये प्रोपगेट करना, पेशेंट को भी खुद भी इससे कन्विंस होना, क्योंकि आपको 70% मरीज तो मिल जाएंगे जो कंजर्वेटिव पे ट्रीट हो जाएंगे, 30 एकदम से ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन डेवलप करेंगे दैट यू विल बी आउट ऑफ योर कंट्रोल, दैट कैन ओनली बी डील विद इंटरवेंशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पिक करके रिस्क को। इसीलिए इसमें कैटेगरी बन गई है अब कि इमीडिएट इन्वेजिव ST एलिवेशन और हाई रिस्क, उससे कम हाई, वेरी हाई रिस्क, उससे कम हाई रिस्क हैं तो इन पेशेंट इन्वेजिव, विद इन 24 आवर उनकी इन्वेजिव होनी है। फिर इन पेशेंट इन्वेजिव हैं जो आपने मालूम कर लिए, अल्टीमेटली डेफिनेट हुए, और फिर सेलेक्टिव इन्वेजिव हैं जो वर्कअप के हिसाब से होते हैं। तो राइट फ्रॉम द सिम्टम यू हैव टू असेस द रिस्क एंड प्लान द डेस्टिनेशन ऑफ योर पेशेंट, वेयर दिस पेशेंट शुड गो और शुड स्टे विद यू, दैट्स द की। जल्दी से मैं क्विकली एक आपके सामने सिनेरियो रख के उस पर फिर बात ख़त्म करता हूँ। अ 45 years diabetic female with few episodes of central chest heaviness lasting 10 to 15 minutes the last 3 days, presently symptom free with normal ECG and negative troponin. Apparently कुछ अलामतें होती हैं 10-15 मिनट की, कुछ वक्फों से हो रही हैं। आगे आपने ECG की नॉन स्पेसिफिक सी चेंजेस हैं, ट्रोपोनिन भी नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है हालांकि। Apparently ये पेशेंट इस वक्त इस स्टेट में आ रहा है लो रिस्क, लेकिन रिस्क फैक्टर है और चीजें हैं। और यही देखिए ये मरीज लास्ट नाइट शी एक्सपीरियंस द मोस्ट सिवियर एपिसोड फॉर विच शी विजिटेड नियर बाय हॉस्पिटल वेयर एन ECG was done and was asked to visit cardiac emergency. She got symptom free, so went home, but
came now for further workup. एक एपिसोड ऐसा था जिसमें पेन के दौरान ही ईसीजी हो गई है, उसमें देखें तो ये चोर यहां से, because she was diabetic, she was female, her symptoms were that convincing and presenting ECG wasn't showing anything, but last night with symptoms she had this ECG which showed clear cut. So sometimes you have to dig out history, ECG, combine them together to finally decide about your patient. So it's very important when you're dealing ACS as a primary care or first person in contact, rely on history and really make the destination of your patient according to the history. Thank you for your patience listening.